السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، where life comes alive۔ مجالس مقامی کے انتخابات میں حصہ لینے 2 بچوں کے لزوم کو تلنگانہ کابینہ نے کیا برخاست۔ BC تحفظات، آبپاشی پروجیکٹس پر بھی تبادلے خیال۔ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب میں پارٹی امیدوارہ ماگنٹی سنیتا کو کامیاب بنانے کے لیے مل کر کام کریں، KCR کی پارٹی لیڈرز کو ہدایت۔ کانگریس کے ناکام وعدوں کو گھر گھر پہنچانے پر دیا زور۔ گٹکیسر پوچارام پولیس اسٹیشن کے حدود میں فائرنگ واقعے کے سلسلے میں پولیس نے کیا سنسنی خیز انکشاف۔ گو رکشک نے مبینہ طور پر 5 لاکھ روپے ملزم سے طلب کیے تھے، 3 ملزمین گرفتار۔ BJP کا روایتی واویلا۔ اور ٹاسک فورس اور بنڈلگوڑا پولیس نے بین ریاستی ڈرگ پیڈلنگ کے ریکٹ کو کیا بے نقاب، 3 افراد گرفتار، 2 کروڑ 70 لاکھ روپے کا گانجا ضبط۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔
तेलंगाना काबीना ने मजालिस मकामी के इंतखाबात में हिस्सा लेने 2 बच्चों के लुज़ूम की बर्खास्तगी को मंजूरी दे दी है। जुमेरात को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना का इजलास हुआ और इजलास में तेलंगाना पंचायत राज एक्ट 2018 सेक्शन 21(3) को हटाने का फैसला किया गया। अब मजालिस मकामी के इंतखाबात में 2 से ज़ायद बच्चों वाले भी हिस्सा ले सकते हैं। इजलास में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम और हिदायत का जायज़ा लिया गया। मजालिस मकामी के इंतखाबात का मसला भी ज़ेर बहस आया। कालेश्वरम SLBC SRSP के तामीराती कामों पर भी तबादले ख्याल किया गया। हुकूमत तेलंगाना ने लाइफ साइंस के शोबे में 2030 तक 1 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी का निशाना मुकर्रर किया। वज़ीर IT व सनतें श्रीधर बाबू ने, जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, मेलबोर्न में मुनक्किदा ऑस्ट्रेलिया बायोटेक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2025 से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एक रोड मैप तैयार किया गया है जिसके जरिए तेलंगाना को ग्लोबल लाइफ साइंस का मरकज बनाया जाएगा। लाइफ साइंस के लिए एक जामी पॉलिसी मुदव्विन की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की सूबाई विक्टोरिया हुकूमत के वज़रा और दीगर अहम कायदीन के साथ उन्होंने इस मौजू पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 20 महीनों के दौरान 3.2 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी को राग़िब किया गया, जिसमें 63,000 करोड़ रुपए लाइफ साइंस शोबे से मुताल्लिक़ हैं। लाइफ साइंस की बरामदात 26,000 करोड़ रुपए से मुतजाविज़ कर गई हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकारों को तेलंगाना में सरमायाकारी करने की तरगीब दी। उन्होंने लाइफ साइंस और यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी को शुरू किए जाने का भी हवाला दिया। उन्होंने तरक्की के मुख्तलिफ शोबों की निशानदही करते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकारों को बायो एशिया 2026 कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी, जो आइंदा साल हैदराबाद में मुनक्किद होगी। BRS पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए पार्टी उम्मीदवारा मागुंटी सुनीता को कामयाब बनाने के लिए मुत्तहिद होकर काम करने का पार्टी लीडर्स और कारकुनों को हिदायत दी है। KCR की इरावली क़यामगाह पर जुमेरात को पार्टी के लीडर्स का इजलास हुआ। इजलास में साबिक़ वज़रा KTR, हरीश राव, श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौर, सबिता इंदा रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। KCR ने पार्टी लीडर्स पर जोर दिया कि ज़िमनी इंतखाब के लिए इंतखाबी मुहिम में तेज़ी पैदा की जाए, भारी अक्सरियत से M सुनीता को कामयाब बनाया जाए। साबिक़ वज़ीर आला ने पार्टी लीडर्स और कारकुनों को हिदायत दी है कि कांग्रेस के नाकाम वादों को हर घर तक पहुंचाया जाए। इंतखाबात के दौरान कांग्रेस ने जो अवाम से वादे किए थे और उनकी तकमील में नाकामी के सिलसिले में भी मुहिम चलाई जाए। KCR ने यह भी कहा कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी ने रॉडी शीटर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले को टिकट दिया है। जुबली हिल के अवाम को ऐसे उम्मीदवारों को सबक सिखाना चाहिए। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने रियासत में अमन व कानून की सूरत हाल को लेकर रेवंत रेड्डी की हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि तेलंगाना की पुलिस मिशनरी क्या कर रही है। DGP श्रीधर रेड्डी ने कहा था कि हमारे पास कोई गुलाबी या सुर्ख किताब नहीं है, सिर्फ खाकी किताब है। KTR ने सवाल किया कि क्या खाकी किताब को कव्वे ने छीन लिया है। KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने एक बंदूक दी और रोहन रेड्डी ने उसी बंदूक से धमकी दी। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा की बेटी ने खुद इस बारे में बयान दिया है, लेकिन पुलिस कहती है कि कोंडा मुरली ने बंदूक दी थी और समंत ने धमकी दी है। उन्होंने सवाल किया कि पुलिस की ताकत, हौसला और ज़हानत को आखिर क्या हो गया है। KTR का यह भी कहना था कि वजीर आबकारी जोपली कृष्णा राव के बेटे और वजीर आला रेवंत रेड्डी के दामाद के दरमियान शराब की 500 करोड़ रुपए के टेंडर को लेकर रस्साकशी के बाइस 10 साल से खिदमात अंजाम दे रहे दियानतदार IAS ओहदेदार SAM रजवी ने रजाकाराना तौर पर मुलाजिमत से सुबकदोशी अख्तियार करने का फैसला किया है। KTR का कहना था कि रियासती वजीर के बेटे को शराब का टेंडर नहीं मिला, लेकिन वजीर आला के दामाद ने इस टेंडर को हासिल कर लिया।
उन्होंने कहा कि सैयद अली मुर्तज़ा रज़वी एक IAS ओहदेदार थे जिन्हें काबीनी सतह पर जाने का मौका मिला, लेकिन रजाकाराना तौर पर उन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। ఈ మంత్రి ముఖ్యమంత్రి బాధ నాకెందుకని చెప్పి అధికారి తప్పుకొని పారిపోయే పరిస్థితి. పారిపోతుంటే ఆయన పారిపోనియొద్దు, నేను చెప్పినట్టు చేయలేదు కాబట్టి ఆయన మీద విచారణ జరిపించాలని ఇక మంత్రి గారు ఇంత పెద్ద ఉత్తరం రాసిండు. అంటే ఇంత అరాచకం ఈ ప్రభుత్వంలో ఈరోజు నడుస్తూ ఉంది. గతంలో కూడా మనం చూసినాం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో. గతంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఆనాడు కూడా ఇట్లాగే అధికారులు మరి అప్పుడున్న ప్రభుత్వాలు చెప్పినట్టుగా చేస్తే చివరికి వాళ్ళు జైలుకు పోయినారు. ఇప్పుడు కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా, ఈరోజు అధికారంలో కాంగ్రెస్ ఉన్నది. ఈరోజు అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏదైతే వ్యవహారాలు చేస్తున్నదో నేను అధికారులకు అపీల్ చేస్తా ఉన్నా, అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ రిజ్వీ గారు చివరికి వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. మీరు రేవంత్ రెడ్డో లేకపోతే ఇంకో మంత్రో వాళ్ళు చేసే అరాచకాలకు వత్తాసు పలికితే, వాళ్ళు చేసే అన్యాయాలకు మీరు అండగా నిలిస్తే తప్పకుండా మీకు కూడా శిక్ష తప్పదు. దయచేసి జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పి అధికారులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. IAS ओहदेदार SM रज़वी के रजाकाराना तौर पर रिटायरमेंट के ऐलान पर रियासती हुकूमत में भी खलबली देखी जा रही है। रियासती वजीर जोपली कृष्णा राव ने गुज़िश्ता रात चीफ सेक्रेटरी को मकतूब रवाना करते हुए रज़वी का रिटायरमेंट कबूल न करने की दरख्वास्त की थी। इसी सिलसिले में बताया जा रहा है कि जोपली कृष्णा राव ने नायब वज़ीर आला भट्टे विक्रमार्का से भी मुलाकात की है। जोपली कृष्णा राव ने अपने मकतूब में रज़वी पर इख्तियारात से तजावुज़ होकर काम करने का इल्ज़ाम लगाया है। जुमेरात की दोपहर SM रज़वी ने काबीना के इजलास के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से भी मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने रज़ाकाराना रिटायरमेंट के फैसले पर रज़वी से रज़रसानी की दरख्वास्त की है। तेलंगाना जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए 81 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ पर्चों की जांच का अमल 17 घंटों तक जारी रहा। 211 उम्मीदवारों के बिन जुमला 81 उम्मीदवारों के पर्चे दुरुस्त पाए गए। बाकी उम्मीदवारों के पर्चों को मुस्तरद कर दिया गया। जांच के दौरान 81 उम्मीदवारों के 135 पर्चेजात को दुरुस्त करार दिया गया, जबकि 130 उम्मीदवारों के 186 पर्चे मुस्तरद हुए हैं। अहम मुकाबला कांग्रेस और BRS में बताया जा रहा है। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में जिन उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, इनमें से बाज़ उम्मीदवारों ने जुमेरात को रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के पास एहतजाज किया। आज़ाद उम्मीदवारों का कहना था कि हमारे पर्चे क्यों मुस्तरद किए गए, इस बारे में सरकारी तौर पर वजाहत की जाए। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को तहवील में लेकर वहां से मुंतशिर किया। गवर्नमेंट व्हिप आदि श्रीनिवास ने कहा है कि तेलंगाना के अवाम KCR और KTR की नीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मीडिया से बात करते हुए आदि श्रीनिवास ने कहा कि अपने दौर इख्तिदार में दोनों ने तेलंगाना को चोरों की तरह लूटा, जमहूरियत का मजाक उड़ाते हुए हुकूमत की। KCR ने अपने दौर में अपने वज़रा का तक एहतराम नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के वज़ीर आला तमाम अवामी नुमाइंदों का एहतराम करते हैं। अपनी ही बेटी को पार्टी से निकालने की तारीख BRS की है। KCR और KTR को पहले अपना घर संभालना चाहिए, बाद में कांग्रेस के बारे में बात करनी चाहिए। आदि श्रीनिवास ने कहा कि BRS को जुबली हिल्स के इंतखाब के लिए ड्रामा बंद करना चाहिए, उछलकूद से कोई फायदा नहीं होगा। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अवाम से फर्दन मुलाकात करके उन्हें कामयाब बनाने की अपील की, जहां अवाम ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और उन्हें अपना कीमती वोट देने का अज़्म किया। इंतखाबी मुहिम में नवीन यादव की अहलिया और इनकलाबी शायर गदर की दोख्तर ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर नवीन यादव ने यूसुफगुड़ा, जवाहर नगर के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता किया। आज जुबली हिल्स इलेक्शन के लिए गदरन्ना का बेटी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मैं वेन्नला गली गली प्रचार के लिए आए हैं। और नवीन भैया, चिन्न श्री इस्लाम बाबाई हमारा फैमिली फ्रेंड है, गदरन्ना से बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड है। ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही ये फैमिली ऐसा नहीं है, इलेक्शंस के पहले भी ऑलमोस्ट 40 इयर्स से जुबली हिल्स में पूरे स्लम एरियाज के सब झोपड़ी पट्टे वालों को सबको पानी
ये ड्रेनेज सिस्टम, रोड सिस्टम के हिसाब में चिन्न सिस्टम बाबे ने बहुत काम किए हैं। ये पूरे जुबली हिल्स में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ तो वो भी कांग्रेस के हाया में हुआ है। तो तब हमारे जनार्दन रेड्डी सर थे, उनके हाया में हुआ है। तब चिन्न श्रीशम यादव सब, हम सब इधर सब मिलकर काम करते थे। सो सब बहुत खुश है नवीन भैया को टिकट आने के वास्ते। इवन हमारे एमएम साहब भी वही बोले थे। सो एमएम भी इधर सपोर्ट कर रहा है। सो सबको धन्यवाद। कांग्रेस को जिताना, नवीन भैया को जिताना। तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता ने कहा है कि अगर तेलंगाना अवाम चाहेंगे तो तेलंगाना जागृति को सियासी पार्टी में तब्दील किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए कविता का कहना था कि तेलंगाना जागृति समाजी तंजीम की तरह काम करती रही है, तेलंगाना के अवाम के मफादात के लिए जदोजहद करती आई है और आगे भी इसकी जदोजहद जारी रहेगी। अगर रियासत के अवाम तेलंगाना जागृति को एक सियासी पार्टी के तौर पर देखना चाहते हैं तो इस पर भी गौर किया जाएगा। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात की फीस अदा करने की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर के मुताबिक इम्तिहानी फीस 30 अक्टूबर से 13 नवंबर के दरमियान जमा कराई जा सकती है। तलबा को हिदायत दी गई है कि वो अपनी फीस स्कूल के हेडमास्टर के जरिए अदा करें। हेडमास्टर्स को 14 नवंबर तक ऑनलाइन फीस जमा कराने और इसकी तफसीलात 18 नवंबर तक जिला तालीमी अफसर DEO को पेश करने की हिदायत दी गई है। मजीद बताया गया है कि 50 रुपये लेट फीस के साथ 29 नवंबर तक, 200 रुपये लेट फीस के साथ 2 से 11 दिसंबर तक और 500 रुपये जुर्माने के साथ 15 से 29 दिसंबर के दरमियान इम्तिहानी फीस जमा करने की इजाज़त दी गई है। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने तेलुगु देशम के रुकन असम्बली बालाकृष्ण को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने सवाल किया कि नशे में धुत शख्स को असेंबली में दाखिल होने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। अगर कोई शख्स असेंबली में इस तरह की गुफ्तगू करता है तो उनकी दिमागी हालत पर भी सवाल उठते हैं। ऐसे शख्स का इलाज कराना जरूरी है। गटकेसर के पोचाराम पुलिस स्टेशन हदूद में नामनिहाद गौरक्षक प्रशांत उर्फ सोनू सिंह पर हमला 5 लाख रुपए के मुतालबे के सिलसिले में पैदा तनाज़े पर हुआ है। वाक़े के सिलसिले में रचाकुंडा पुलिस ने 3 मुलज़मीन को 12 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। जाफरानी तंजीमों की तरफ से इस वाक़े को लेकर जिस तरह का प्रोपोगंडा किया जा रहा था, कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा जी सुधीर बाबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जख्मी सोनू सिंह और मुलजिम इब्राहिम के देरीना ताल्लुकात से मुतालिक कई एक सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। कमिश्नर पुलिस ने मुलजिम इब्राहिम कुरैशी के बयान का हवाला देते हुए बताया कि सोनू सिंह ने मवेशियों से मुतालिक अपनी सरगर्मियों को रोकने के लिए मुबैना तौर पर 5 लाख रुपए तलब किए थे। कमिश्नर पुलिस सुधीर बाबू ने बताया कि 24 साला इब्राहिम कुरैशी, 34 साला मोहसिन और 29 साला करवा निवास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदगान के पास से देसी साख्ता पिस्तौल, कार, 3 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। बताया गया है कि पिस्तौल इब्राहिम कुरैशी ने छत्तीसगढ़ में अपने दोस्त के पास से हासिल की थी। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक सोनू सिंह और इब्राहिम के दरमियान कई बार मोबाइल फ़ोन पर बातचीत हुई थी। 26 जुलाई को दोनों ने पहली बार फ़ोन पर बात की थी। 25 अगस्त को भी दोनों ने फ़ोन पर बात की। कमिश्नर पुलिस का कहना था कि सोनू सिंह मवेशियों से मुताल्लिक इत्तलात बाज़ हिंदू तंजीमों को भी फराहम किया करता था। इब्राहिम भी मवेशियों के कारोबार से वाबस्ता था। चूँकि उसके मवेशी पकड़वाए जा रहे थे, इस वजह से उसे नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। इब्राहिम ने सोनू सिंह से इस सिलसिले में फ़ोन पर बात भी की थी और फिर 4 शुंबे की शाम सोनू सिंह ने इब्राहिम को बातचीत के लिए पोचाराम तलब किया और रकम को लेकर भी बातचीत हुई। दोनों टी स्टाल के पास खड़े होकर बात कर रहे थे और बहस व तकरार के बाद इब्राहिम ने फायरिंग की। इसके बाद मुलजिमीन फरार हो गए। पुलिस ने सोनू सिंह को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मवेशियों की मुंतकिली के मामले में किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, इसकी इत्तला पुलिस को दी जाए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि रचाकुंडा पुलिस ने अब तक 5110 मवेशियों को बाजियाब किया है और पुलिस गैर कानूनी मवेशियों की मुंतकिली के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। एक और हमलावर हनीफ मफरूर बताया गया है।
इन मुलजिमीन को शमशाबाद के पास गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले चारशंबे की रात इस वाक़े के बाद जख्मी शख्स को सिकंदराबाद के खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कई बीजेपी लीडर्स बशमूल मरकजी वज़रा किशन रेड्डी, बंडी संजय, सदर रियासती बीजेपी रामचंद्र राव, अरकान पार्लियामेंट डी अरविंद और ई राजेंद्र ने भी हॉस्पिटल पहुंचकर सोनू सिंह की अयादत की। रात से ही पुलिस की टीमें मुलजिमीन की तलाश के लिए मुतहर्रिक हो गई थीं। रुकन काउंसिल मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस की हिदायत पर सेक्रेटेरिएट में चीफ सेक्रेटरी एम कृष्ण राव तेलंगाना से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने जैन बरादरी के पेशवा महावीर जयंती के मौके पर आम तातील देने का मुतालबा किया। उन्होंने सदर मजलिस का एक मकतूब भी चीफ सेक्रेटरी के हवाले किया है। इस मौके पर जैन बरादरी का एक वफ्द भी मिर्जा रहमत बेग के हमराह मौजूद था। सदर मजलिस की हिदायत और रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की रहनुमाई में हल्का असम्बली नामपल्ली के मल्लेपल्ली डिवीज़न में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में नुमाइंदा रुकन बलदिया मल्लेपल्ली डिवीज़न जफर खान ने महकमे आबिरसानी के दफ्तर वाक़े करतबाद में DOP विनोद भार्गव के हमराह इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में उन्होंने अपने डिवीज़न के इलाके आगापुरा के लिए पीने के पानी की पाइपलाइन की मंजूरी के अलावा दूसरे उमूर पर भी बातचीत की। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने रणमस्तपुरा डिवीज़न के इलाके चिराग अली नगर और दीगर इलाकों का दौरा करके तरक्याती कामों का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मुरली मनोहर मंदिर से बैकरी तक NP2 पाइपलाइन के काम तकरीबन करीबुल खत्म हैं। मज़कूरा कामों की लागत 75 लाख रुपए बताई गई है, जिससे 970 की NP2 पाइपलाइन बिछाई गई। मज़कूरा कामों की तकमील के बाद मुकामी अफराद को राहत हुई है। इसके अलावा 37 लाख रुपए की लागत से NP2 पाइपलाइन CC रोड के काम जारी हैं, जबकि 42 लाख रुपए की लागत से CC रोड के काम अमीर हमजा मस्जिद के पास भी किए जा रहे हैं। इस मौके पर मजलिस के रुकन बलदिया रणमस्तपुरा डिवीज़न मोहम्मद कादर और मजलिस के इब्तदाई सदूर व मुतमदीन मौजूद थे। मूसाराम बाग से अंबरपेट को जोड़ने वाले कदीम चांदनी पुल को मुनहदिम कर दिया गया है। मुतल्लिका हुक्काम ने बताया कि हाल ही में मूसा नदी में पानी के बहाव की वजह से पुल को शदीद नुकसान पहुंचा था और ये पुल गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए गैर महफूज हो गया था। इस कदीम पुल को मुनहदिम किया जा रहा है, जबकि इसके मुतवाज़ी नया लंबा ऊंचाई वाला पुल ज़ैर तामीर है। टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन और बंडलागुड़ा पुलिस ने बैन रियासती ड्रग पेडलिंग के रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने बताया कि उड़ीसा के मालिकगिरी से बराह सरीका कुलम और हैदराबाद गांजा महाराष्ट्र के नासिक को मुंतकिल किया जा रहा था। इस सिलसिले में बंडलागुड़ा के हदूद में OS फंक्शन हॉल के करीब कलीमुद्दीन, शेख सुहेल और अफजल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदगान के पास से 2 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत का 909 किलो गांजा जब्त किया गया है। OS पैलेस फंक्शन हॉल बंडरगुट्टा पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में एक सस्पिशियस व्हीकल आयशर व्हीकल को पकड़े और उसमें करीब 900 से ज्यादा गांजा को बरामद किए, जिसमें 3 लोग ये गांजा को ट्रांसपोर्ट करने वाले थे। हैदराबाद से लेके महाराष्ट्र में नासिक को जाने वाले थे। ये पूरा लोड ओडिशा स्टेट के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट कलीमेला गांव से लेके आ रहे थे और इसमें काजू का जो शेल्स है उसका लोड के नीचे ये 900 किलो गांजा रख के यहाँ पे ला रहे थे। इस मामले में हम लोग 3 लोगों को गिरफ्तार किए और उनको डिटेल क्वेश्चन करने के बाद हमें ये इंफॉर्मेशन मिला कि ये पूरा एक रहमान करके एक आदमी ने पूरा चला रहा है ये काम, जिनका दोस्त जीतो नाम के एक उड़ीसा के है और सुरेश नाम के एक आंध्र प्रदेश के है। और ये सब लोग मिलके नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में एक महेश नामी आदमी को सप्लाई करने वाले थे और हर ट्रिप को कम से कम 3 से 4 लाख मिलते हैं। और ये रहमान अभी एब्सकॉन्डिंग है, बाकी लोगों को हम लोग गिरफ्तार करेंगे। ये पूरा
कीमत 2 करोड़ 22 लाख वर्थ रुपीस है और ये आइशर व्हीकल और सेलफोन्स ये पूरा मिला के 2 करोड़ 40 लाख का कीमती है। फिलहाल हम लोग 3 लोगों को गिरफ्तार करें, बाकी लोग फरार में हैं और हम लोग एफर्ट्स रखेंगे इनको गिरफ्तार करने के लिए। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में तालिबा के साथ मुबैना इस्मत रेजी के इल्ज़ाम का सामना कर रहे 62 साला तेलुगुदेशम के लीडर नारायण राव ने झील में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। गुज़िश्ता रोज़ स्कूली तालिबा के साथ उनका वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उनका ये कहना था कि वो लड़की को ज़रूरत से फारिग होने के लिए लाए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ अफराद ने उनकी वीडियो बनाई और फिर वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने नारायण राव को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और जब पुलिस उन्हें ले जा रही थी उन्होंने झील में छलांग लगा दी। इस मामले की तहकीकात जारी है। तेलंगाना के जंगांव जिले में मुकामी दुकानदार ने नकली साधुओं का पर्दाफाश किया है। बताया गया है कि 4 साधु स्टेशन घनपुर के हुदूद में आए और दुकानदार से कहा कि वो खुशहाली के लिए पूजा करेंगे। इस दौरान कुछ पाउडर फेंका गया और दुकानदार की रकम ले ली गई। जब साधु कार में फरार होने की कोशिश कर रहे थे, मुकामी अवाम ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। साधुओं ने उन पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। तेलंगाना के जयशंकर भोपालापल्ली जिले के कानगी स्कूल में पीटी टीचर की जानिब से 10वीं जमात की तालिबात के साथ नाशाइस्ता सलूक करने पर इसको ज़दोकोब किया गया। इस वाक़े का वीडियो भी मंजर आम पर आया है। पीटी टीचर मोहन की तरफ से लड़कियों के साथ जिस्मानी छेड़छाड़ की गई थी और लड़कियों ने इस बात की तल्ला सरपरस्तों को दी। सरपरस्त स्कूल पहुंचे और पीटी टीचर की पिटाई की गई। रघुराम नगर कॉलोनी हैदर शाह कोट के रहने वाले 96 साला एम थॉमस 9 अक्टूबर से लापता हो गए हैं। वो घर से किसी काम के लिए निकले थे और वापस घर नहीं पहुंचे। किसी को नजर आ जाए तो दरख्वास्त की गई है कि नारसिंगी पुलिस को इत्तला करें। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार,
जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मजालिस मुकामी के इंतखाबात में हिस्सा लेने 2 बच्चों के लुजूम को तेलंगाना काबीना ने किया बर्खास्त। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात आबाशी प्रोजेक्ट्स पर भी तबादले ख्याल। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवारा मागुंटी सुनीता को कामयाब बनाने के लिए मिलकर काम करें, केसीआर की पार्टी लीडर्स को हिदायत। कांग्रेस के नाकाम वादों को घर घर पहुंचाने पर दिया जोर। गटकेसर पोचाराम पुलिस स्टेशन के हुदूद में फायरिंग वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने किया सनसनीखेज इंकशाफ। गौरक्षक ने मुबैना तौर पर 5 लाख रुपए मुलजिम से तलब किए थे। 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। बीजेपी का रिवायती वावेला। और टास्क फोर्स और बंडलागुड़ा पुलिस ने बैन रियासती ड्रग पेडलिंग के रैकेट को किया बेनकाब। 3 अफराद गिरफ्तार। 2 करोड़ 70 लाख रुपए का गांजा जब्त। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।